Hello everyone. In the previous video we have seen what is APH and what are the causes behind APH. So in this video we will see what is placenta previa, one of the major conditions responsible for APH. So let's see what is placenta previa. So definition, yeah, it says when the placenta is implanted partially or completely over the lower uterine segment over and adjacent to the internal os, it is called placenta previa. So yeah, here the main thing is to understand the lower uterine segment, so from where it derives, and because the whole definition revolves around the lower uterine segment, so you have to understand what is lower uterine segment in order to understand the definition clearly in your mind. So basically lower uterine segment is not present in the non-pregnant uterus, right? So only in the pregnant uterus, the uterus, the only in the pregnant state, sorry, the uterus is divided anatomically into the two segments, the upper one that is active and the lower one that is a passive segment of the uterus. So from where this segment derives, actually to understand this, I have one picture to show you. So yeah, this is isthmus basically present between anatomical and histological internal os, which is 0.5 centimeter in length, and in the pregnant state this isthmus will become 7 or 7.5 centimeter in length and forms the lower uterine segment, which we are talking about in the definition. तो बेसिकली यहाँ पर बहुत कुछ है बताने के लिए कि पूरा हाइट वगैरह आप पूरा रिवाइज कर सकते हो, बट बेसिकली क्या है कि यहाँ पूरा ये सारा एरिया छोड़कर जब ये लोअर यूटेराइन सेगमेंट पर प्लेसेंटा पार्शली या फिर कंप्लीटली इम्प्लांट कर रहा है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया, राइट? सो आई होप दिस इज क्लियर इन योर माइंड व्हाट इज प्लेसेंटा प्रीविया. Let's see the incidence is 0.5% to 1% among hospital deliveries. Etiology not known, idiopathic बोलेंगे. तो ये थ्योरीज दे रखी हैं, थ्योरीज पॉस्टुलेट की गई हैं, तो उसको देख लेते हैं एक बार. ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी, परसिस्टेंस ऑफ कोरियोनिक एक्टिविटी इन द डेसिडुआ, बिग सरफेस एरिया ऑफ द प्लेसेंटा, and one more is defective decidua, which is not written here, but defective decidua means basically because of any kind of reason the decidua is defective in nature, and that's why the implantation is likely to occur in the lower uterine segment. I hope this is clear. आगे बढ़ें. So yeah, this is very important part of this whole topic, the types or degrees of placenta previa. To understand this, I want to draw some images here. This is suppose this is the uterus. I'm not a very good in drawing, but just understand this. Okay, so in type 1, what happens in type 1 low lying placenta, the major part of the placenta is attached to the upper segment and only the lower margin encroaches onto the lower segment but not up to the os. So what they are trying to say is कि यहाँ जो implantation होगा वो os तक नहीं पहुँचा है, लेकिन लोअर यूट्राइन सेगमेंट तक उसका रीच है, उसका जो इंक्रोचमेंट है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट तक है, बट ऑस तक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. तो यहाँ ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट फिर से आ गया. अब इसको क्लियर करने के लिए यहाँ इन्होंने डिस्टेंस बता रखा है कि जो इंटरनल ऑस के और इम्प्लांटेशन के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 2 सेंटीमीटर. तभी हम कहेंगे कि हाँ जी ये अपर सेगमेंट से होते हुए लोअर सेगमेंट तक आ चुका है ये इम्प्लांटेशन. तो अगर ऑस और इम्प्लांटेशन जहाँ हुआ है उसका डिस्टेंस है, उसके बीच का डिस्टेंस विद इन 2 सेंटीमीटर है, दैन इट इज़ लो लाइंग टाइप 1 प्लेसेंटा प्रीविया. नाउ इन टाइप 2, what happens in type 2, placenta reaches the margin of the internal os but does not cover it. तो यहाँ ये margin तक placenta पहुँच गया है बट अभी cover का कोई issue नहीं है. तो this is type 2 or marginal placenta previa. Now in type 3, it is covering the internal os but not completely, it is covering only partially. So here the implantation is something like this. So this is our type 3 or incomplete or partial central placenta previa. Now in type 4, what happens?
the implantation occurs completely over the internal os, and that is what is called central or total placenta previa. So the main thing to understand is the कहाँ तक इम्प्लांटेशन हुआ है. तो यहाँ टाइप 1 में विद इन 2 सेंटीमीटर इंटरनल ऑस के, टाइप 2 में मार्जिन तक हुआ है, दैट्स वाई नेम इज मार्जिनल. टाइप 3 इनकम्प्लीटली पार्शली हुआ है, और टाइप 4 में कम्प्लीटली उसने इंटरनल ऑस को कवर कर लिया प्लेसेंटा ने. इस तरीके से इम्प्लांटेशन हुआ है, तो हमने उसे टाइप 4 सेंट्रल और टोटल प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ जो इंटरनल ऑस है ना, दिस इज यू हैव टू रिमाइंड इन योर माइंड, दिस इज दैट कि यहाँ जो इंटरनल ऑस है वो डायलेटेड इंटरनल ऑस की बात की गई है. इस पिक्चर में मैंने जो भी बनाया है ये इंटरनल ऑस डायलेटेड बनाया है, क्योंकि हम जब कंफ्यूज नहीं होना है हमें, ठीक है, क्योंकि इनकम्प्लीट और पार्शियल में क्या होगा कि प्लेसेंटा जो है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट को कवर कर रहा है, लेकिन जब डायलेशन होगा फाइनली, तो डायलेशन के टाइम पे वो एंटायरली कवर नहीं करेगा सर्वाइकल ऑस को, राइट. सो आई होप दिस विल बी क्लियर इन योर माइंड. फॉर नाउ लेट्स मूव अहेड. सो या, risk factors of placenta previa. So to understand the risk factors, हम क्या करेंगे कि हमें ये पता होना चाहिए बेसिकली कि एक तो डिफेक्टिव डेसिडुआ, अभी हम देख के आए थे, थ्योरीज में देख लिया था हमने कि डिफेक्टिव डेसिडुआ एक बहुत मेन रीज़न होता है प्लेसेंटा प्रीविया होने का. तो डिफेक्टिव डेसिडुआ पे हमें फोकस करते हुए चलना है. तो डिफेक्टिव डेसिडुआ किस किस केसेस में मिलेगा, कि कहाँ डेसिडुआ इतना वीक हो गया कि अभी इम्प्लांटेशन पूरा यूट्रस छोड़ के लोअर यूट्राइन सेगमेंट में हुआ है. ठीक है, तो पहले तो हम ये देखेंगे. सो या, डिफेक्टिव डेसिडुआ किस केसेस में दिखेगा हमको, प्रायर क्यूरेटेज, प्रायर पीपी, स्मोकिंग एंड यूट्राइन स्कैरिंग हो रखी है सिजेरियन सेक्शन की वजह से, मायोमेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी, किसी भी वजह से. तो पहला तो हमारा डिफेक्टिव डेसिडुआ हो गया, जिसकी अंडर हमने ये सारे कवर कर लिए. दूसरा हमें बिग प्लेसेंटा भी हमने पढ़ा था ईटियोलॉजी में. तो बिग प्लेसेंटा हमें देखना है कहाँ कहाँ हो सकता है बिग प्लेसेंटा. ऑफकोर्स मल्टीपैरिटी में मिलेगा आपको, ठीक है. और कहाँ मिल सकता है, ट्विंस में मिल सकता है. तो ट्विंस यहाँ नहीं लिखा है, हम लिख देते हैं ट्विंस में मिल सकता है. तो ट्विंस कैन बी अ रिस्क फैक्टर फॉर प्लेसेंटा प्रीविया. और बाकी क्या बचा, आई होप एवरीथिंग इज कवर्ड, क्योंकि प्लेसेंटल साइज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो बिग प्लेसेंटा में ही आ जाएगा प्लेसेंटल साइज. बाकी मल्टीपल प्रेगनेंसी, एशियन वुमेन का हम इसमें ये रेस है, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है. मैटरनल एज हो गया मोर देन 35 ईयर्स, तो यहाँ पे 4-fold इंक्रीज हो जाता है रिस्क प्लेसेंटा प्रीविया का. आगे बढ़े. सो नाउ कॉजेज ऑफ ब्लीडिंग. तो कॉजेज ऑफ ब्लीडिंग में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मैकेनिज्म क्लियर किया गया है कि ब्लीडिंग एक्चुअली में हो क्यों रही है. तो देखिए, लेबर का स्टेट है, और लेबर में तो डायलिटेशन होना ही है लोअर यूट्राइन सेगमेंट का. तो जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा लेबर, वैसे वैसे डायलिटेशन होगा, और जैसे जैसे डायलिटेशन होगा वैसे वैसे क्या होगा कि प्लेसेंटा शेयर्ड ऑफ होगा, क्योंकि प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन ही गलत जगह पर है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में. जहाँ लोअर यूट्राइन सेगमेंट डायलेट होगा जैसे जैसे, वैसे वैसे प्लेसेंटा शेयर ऑफ होगा, ब्रेक होगा. प्लेसेंटा ब्रेक होगा तो ब्लीडिंग ऑब्वियस सी बातें होगी. तो इसीलिए इसे फिजियोलॉजिकल फिनोमेना बोला गया है, और इसीलिए बोला गया कि ब्लीडिंग इज सेड टू बी इनएविटेबल. हम अवॉइड नहीं कर सकते चाहकर भी. हाँ, हम कर क्या सकते हैं इस केस में, कि अगर हमें पता चल चुका है कि ये प्लेसेंटा प्रीविया का केस है, तो व्हाट वी कैन डू, कि हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे कि हम ब्लीडिंग को और प्रवोक करें. फॉर एग्जांपल, कोई भी वेजाइनल एग्जामिनेशन उस वक्त नहीं करेंगे हम, बिल्कुल हाईली रेस्ट्रिक्टेड, कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाएगा. कोइटल एक्ट नहीं करना है, एक्सटर्नल वर्जन और हाई रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, इन सब से प्रवोक हो जाता है वो ब्लीडिंग, तो और ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होगी. तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है. फिर मैकेनिज्म्स ऑफ स्पॉन्टेनियस कंट्रोल. अभी जो ब्लीडिंग है वो ब्लीडिंग कंटिन्यूस तो है नहीं नेचर में, वो रिकरेंट नेचर में ब्लीडिंग है, ठीक है. तो आपको ये समझना होगा कि जो ब्लीडिंग है वो रिकरेंट नेचर की है. तो ब्लीडिंग रिकरेंट नेचर की है, इसका मतलब होने के बाद स्टॉप भी हो रही है. तो स्टॉप होने के जो मैकेनिज्म्स हैं वो बताए गए हैं. थ्रोम्बोसिस, मैकेनिकल प्रेशर कहाँ से आ रहा है, प्रेजेंटिंग पार्ट से, प्लेसेंटल इन्फाक्शन. ओके, नेक्स्ट. यहाँ क्लिनिकल फीचर्स बताए गए हैं, सिम्टम्स एंड साइंस. तो बेसिकली सिम्टम्स क्या रहेंगे यहाँ पे,
ब्लीडिंग, वेजाइनल ब्लीडिंग इज द ऑब्वियस सिम्टम। तो यहाँ पे जो ब्लीडिंग है वो पेनलेस रहेगी, ठीक है, पेनलेस रहेगी। नेचर कैसा होगा, सडन ऑनसेट रहेगी और अपेरेंटली कॉजलेस भी रहेगी। साइंस क्या हो जाएंगे, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने पे पता चलेगा कि साइज जो है यूट्रस का उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, वो बिल्कुल प्रोपोर्शनेट है टू द पीरियड ऑफ जेस्टेशन। और कभी किसी केस में पीरियड ऑफ जेस्टेशन से थोड़ा सा छोटा आ सकता है, स्मॉल आ सकता है, बट मोस्टली प्रोपोर्शनेट टू द पीरियड ऑफ जेस्टेशन होता है, ठीक है। यूट्रस आपको रिलैक्स्ड मिलेगा, सॉफ्ट मिलेगा और विदाउट एनी लोकलाइज्ड एरिया ऑफ टेंडरनेस। तो ये हमने ऊपर भी देख लिया कि ब्लीडिंग भी जो हो रही है वो पेनलेस हो रही है, और दूसरा यहाँ टेंडरनेस भी नहीं है, पेन ऑन टच भी नहीं है, ठीक है। परसिस्टेंस ऑफ माल प्रेजेंटेशन, माल प्रेजेंटेशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि क्यों मिल सकती है भाई, क्योंकि देखो ये आपका यूट्रस हो गया और यहाँ पे कहीं जाके ये पूरा जो एरिया है ये प्लेसेंटा ने कवर कर लिया है। तो अब बेबी के पास ऑलरेडी इतना कम जगह है, तो कहीं ना कहीं वो या तो ट्रांसवर्स लाई लेगा या ब्रीच प्रेजेंटेशन मिलेगी, तो इस तरीके से गड़बड़ हो जाएगी, तो माल प्रेजेंटेशन मिल सकती है, ठीक है। हेड इज फ्लोटिंग इन कंट्रास्ट टू पीरियड ऑफ जेस्टेशन। फीटल हार्ट साउंड आपको प्रेजेंट मिलेंगे। अगर फीटल हार्ट साउंड डिमिनिश होते हुए दिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है और ये कौन सा साइन है, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगली वीडियो में मैं आपका ये डाउट लेकिन ज़रूर क्लियर करूँगी, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। और अब बाकी है यहाँ पे वल्वल इंस्पेक्शन, कलर ऑफ ब्लड ब्राइट रेड मिलेगा। ब्राइट रेड का मतलब है कि फ्रेश ब्लीडिंग है, और ब्लीडिंग का जो सोर्स है वो काफ़ी अंदर से नहीं है, काफ़ी मतलब पास से है, तो इंटरनल ऑस और बाहर ब्लीडिंग, तो दैट इज़ ब्राइट रेड और डार्क कलर की ब्लीडिंग मिलेगी। विजाइनल एग्जामिनेशन मैंने अभी बताया ही था आपको कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा, बिल्कुल आ बेल मुझे मार वाली बात हो जाएगी, तो बिल्कुल विजाइनल एग्जामिनेशन यहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इस कंडीशन में। नेक्स्ट, ओके, सो कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस के लिए हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री बहुत कुछ बताएगी कि आपका अगर प्रायर केसेस है प्लेसेंटा प्रीविया का तो ये वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर है ना। अगर आप मल्टी पैरिटी आए हो, अगर आपका मोर देन 35 ईयर है, मैक्रोसोमिक, अब डायबिटिक हो, तो हिस्ट्री में तो काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। बाकी आपका जो कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस होता है, डायग्नोसिस वो आपका यूएसजी रहता है। यूएसजी को कंफर्मेशन डायग्नोसिस में रखा गया है क्योंकि काफ़ी क्लियर हो जाए, काफ़ी नहीं बिल्कुल क्लियर हो जाएगी पिक्चर। तो यहाँ पे डायग्नोसिस को कंफर्म करना है या फिर रूल आउट करना है, तो दोनों के लिए ही यूएसजी प्रेफर किया गया है। तो यूएसजी अगर आपको एब्डोमिनल वाला है या वेजाइनल वाला है वो मैटर करेगा कि वहाँ कौन सा अवेलेबल है। नेक्स्ट, क्लिनिकल कंफर्मेशन कब होगा, क्लिनिकल कंफर्मेशन कब होगा भाई, डबल सेटअप एग्जामिनेशन करेंगे, वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, तब जाके क्लियर होगा, है ना। तो ये ओटी में किया जाता है और ये जनरली किया ही नहीं जाता है क्योंकि ये बहुत ही रिस्की है, और ये सिर्फ आप तब कर सकते हो जब आपका केस काफ़ी हद तक सेफ हो, यानी कि आप टाइप 1 में हो, टाइप 1 के भी एंटीरियर वाले प्लेसेंटा प्रीविया में हो, तभी ये केस पॉसिबल है। दूसरा है एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा फॉलोइंग वेजाइनल डिलीवरी रिवील्स। क्या क्या रिवील होगा, टंग शेप्ड कंपैरेटिवली थिन सेगमेंट ऑफ प्लेसेंटल टिश्यू, रेंट ऑन द मेम्ब्रेन्स, एबनॉर्मल अटैचमेंट ऑफ द कॉर्ड इज मोर कॉमन। ओके, नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस, और कॉम्प्लिकेशंस में मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस देखने हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर एंड ड्यूरिंग परप्यूरियम। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या हो सकता है, एंटीपार्टम हैमरेज एंड वेरिंग डिग्री ऑफ शॉक। शॉक क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है तो शॉक तो होगा ही, है ना। बाकी यहाँ पे कुछ भी क्लियर करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी क्लियर है कि माल प्रेजेंटेशन समझाया जा चुका है। प्री मैच्योर लेबर, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स कहाँ हैं, बेबी को न्यूट्रिएंट्स कहाँ मिलेंगे, जो पूरा यूट्रो प्लेसेंटल कनेक्शन था वही शेयर ऑफ हो रहा है, जो हमारे प्लेसेंटल वेसल्स थे वो शेयर ऑफ हो रहे हैं, तो न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिल रहे, तो प्रीमेच्योर लेबर होगा। अब ड्यूरिंग लेबर क्या क्या हो सकता है, अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, कॉर्ड प्रोलैप्स, कॉर्ड में पोजीशन ही, कॉर्ड का पोजीशन इतना गलत है, कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है। स्लो डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स के ऊपर पूरा इम्प्लांटेशन है, स्लो डायलिटेशन होगा। इंट्रापार्टम हैमरेज, इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ ऑपरेटिव इंटरफेरेंस, रिटेन्ड प्लेसेंटा, पीपीएच होता है। पीपीएच में यहाँ पे बताया गया इम्परफेक्ट रिट्रैक्शन ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, इसकी वजह से हो रहा है।
लार्ज सरफेस एरिया है प्लेसेंटा का, इस वजह से एसोसिएशन ऑफ एडहेरेंट प्लेसेंटा, ट्रॉमा टू द सर्विक्स एंड लोअर सेगमेंट, और ड्यूरिंग परप्यूरियम आपको क्या इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा, सब इन्वॉल्यूशन मतलब इन्वॉल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट हुआ है ऑब्वियसली, ठीक है, और इम्बॉलिज्म, ये सारी चीज़ें आपको कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे, मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे ये सारे, ठीक है। आगे देखते हैं फीटल कॉम्प्लिकेशंस। फीटल कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगे, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ये मैं अभी क्लियर किया है, ये क्यों होगा, इंट्रा यूट्राइन डेथ, प्री मेच्योरिटी, एस्फाइक्सिया, बर्थ इंजरी, कंजेनाइटल माल फॉर्मेशंस, राइट। प्रोग्नोसिस मॉर्बिडिटी देखेंगे तो मैटरनल 1 to 5% है और फीटल 10 to 25% है। नेक्स्ट, okay, now scheme of management of placenta previa in the hospital. This is very important for nursing perspective and for every perspective. This is important, like for university exam also and for entrance also, you must know this management. Okay, तो यहाँ शुरू से शुरू करते हैं कि अगर all the APH patients are to be admitted, क्या करना है, एडमिट करना है, फिर जनरल एंड एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है, क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ ब्लड लॉस, हाउ मच ब्लड लॉस, क्योंकि वही हमें बता पाएगा कि कंडीशन कितनी सीवियर है, हीमोग्लोबिन परसेंट, हीमेटोक्रिट, ये सब क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ब्लड लॉस हुआ है, अनीमिया का पूरा ग्रेडिंग देखनी है हमें, कौन सा अनीमिया चल रहा है ये, ठीक है, ABO एंड RH ग्रुपिंग करनी है, रिससिटेशन इफ नेसेसरी, IV इन्फ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन यूजिंग वाइड बोर कैनुला एंड लोकलाइजेशन ऑफ प्लेसेंटा। तो USG से क्लियर कर लेना है कि प्लेसेंटा एक्चुअली में लोकेशन क्या क्या शो हो रहा है, क्योंकि लोकेशन से बहुत हेल्प हो जाएगा कि अगर पोस्टीरियर वाला है तो भाई हमें सोचना भी नहीं है वेजाइनल डिलीवरी के बारे में, वो हम आगे देखेंगे कि पोस्टीरियर और एंटीरियर, ये थोड़ा सा बताना रह गया था। फिर अभी क्या है, ऑल द APH पेशेंट हमने एडमिट कर लिया, ये सारा काम कर लिया, अब हमें एक्टिवली इंटरफेरेंस कब करना है, कब हमें कुछ भी ना सोचकर सीधे के सीधे एक्शन लेने का टाइम है, ठीक है। दूसरा मतलब सेकंड थॉट का टाइम नहीं है, सीधे एक्शन लेने का ही टाइम है, कार्यवाही करनी ही करनी है। तो वो कब करना है, ब्लीडिंग कंटिन्यू ब्लीडिंग होती जा रही है, प्रेगनेंसी मोर देन 37 वीक्स पे आए हो, तो यानी कि यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि बेबी प्री मैच्योर है तो सोचना पड़े कि वो बेबी का थोड़ा सोच लें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पेशेंट इन दी लेबर एक्संगुएटेड, इतना ब्लड लॉस है कि दैट ब्लड लॉस कैन कॉज द डेथ इवन, फीटल हार्ट साउंड नॉन रियश्योरिंग आ रहे हैं, ग्रॉस फीटल मालफॉर्मेशन है, और स्टेरॉयड थेरेपी इफ द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी लेस देन 34 वीक्स, ठीक है। एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट का ऑप्शन कब रहता है, जबकि थोड़ा सा सेफ है, मतलब सिचुएशन थोड़ा कंपैरेटिवली सेफ है, मींस नो एक्टिव ब्लीडिंग, ठीक है, प्रेगनेंसी लेस देन 37 वीक्स है, यहाँ पे ये कंडीशन क्या बता रही है कि लेस देन 37 वीक्स है और एक्टिव ब्लीडिंग भी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब मदर तो सेफ है, तो हम सोच सकते हैं बेबी के बारे में कि एटलीस्ट इसको थोड़ा सा हम मैच्योर टर्म तक ले आएँ कैसे भी, है ना। तो पेशेंट स्टेबल है हीमोडायनेमिकली, फीटल हार्ट साउंड रीअश्योरिंग है, और कार्डियोटोकोग्राफी पर रिएक्टिव फीटस है, तो ऑल दिस विल डायरेक्ट यू टू द एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट। तो अभी 37 वीक्स तक हमें ये कर लाना है, फिर उसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफिक एविडेंस लेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफिक एविडेंस लेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में प्लेसेंटा का लोकेशन, तो प्लेसेंटल एज क्लियरली यहाँ पे दिखाया गया कि प्लेसेंटल एज क्लियरली 2 to 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द इंटरनल सर्वाइकल ऑस, तो अगर जो प्लेसेंटल एज है करीबन ये दिखाया गया कि 2 to 3 सेंटीमीटर दूर है ही सर्वाइकल ऑस से, तभी हम सोच सकते हैं इंटरनल एग्जामिनेशन और डबल सेटअप एग्जामिनेशन के बारे में, तभी हम थॉट ला सकते हैं इवन अपने माइंड में, तो ऐसे में सेफ रहेगा। फिर आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे, ऑक्सीटोसिन डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्शन पर कि कॉन्ट्रैक्शन किस तरह के आ रहे हैं, तो वो प्लस माइनस हो जाएगा। फिर सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस हो रहा है लेबर का इस तरीके से, तो वेजाइनल डिलीवरी करा देंगे। बाकी अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू करती चली जाती है, लेबर इनिशिएट नहीं हो पा रहा है, तो हम सिजेरियन डिलीवरी की तरफ प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो क्या बैठता है कि जब प्लेसेंटल एज जो है ना विद इन 2 सेंटीमीटर ऑफ इंटरनल ऑस और ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, यानी कि टाइप 1 से ऊपर की बात कह रहे हैं ये, कि 2 सेंटीमीटर से
जो है उसके अंदर अंदर है, मतलब काफ़ी क्लोज है इंटरनल ऑस के, 2 सेंटीमीटर्स के से भी पास है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे और हमारा क्लियर रहेगा कि हमें यहाँ पे CS ही करना है, CS। ओके, सो आई होप दिस इज़ द स्कीम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया इन हॉस्पिटल। आई होप ये सब समझ में आया होगा आपको। तो यहाँ पे एक चीज़ थी जो क्लियर करनी थी, वो टाइप्स में थी और वो मुझे अभी थोड़ा सा क्लिक हुआ। यस, टाइप 1 में हमारे पास अगेन 2 रहते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर, और टाइप 2 में भी हमारे पास 2 रहते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर टाइप्स। ठीक है, तो टाइप 1 और टाइप 2 में भी हमारे पास एंटीरियर और पोस्टीरियर टाइप्स रहते हैं। ये क्लियर हो गया। अभी क्या मुझे यहाँ बताना था कि टाइप 2 पोस्टीरियर, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो मोस्ट डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया का टाइप है, तो वो होता है टाइप 2 पोस्टीरियर। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा क्या प्लेसेंटा है वो पोस्टीरियरली इम्प्लांट हुआ है, और पोस्टीरियर इम्प्लांटेशन की वजह से USG में वो दिख भी नहीं पा रहा है कभी कभार, तो इस वजह से हम रूल आउट कर भी नहीं पाते हैं USG इवन कराने के बाद भी प्लेसेंटा प्रीविया को। और ऐसे में दूसरा जो सबसे मेजर रिस्क हो जाती है वो ये होती है कि जब भी हम रूल आउट तो कर नहीं पाए डायग्नोसिस को, तो जब डायलिटेशन होगा और बेबी नीचे बेबी पुश करेगा तो उससे क्या होगा कि ये जो पोस्टीरियर पार्ट है वो डेफिनेटली प्लेसेंटा का प्रेस होगा कंटिन्यूसली फीटल पार्ट से, और वहाँ पर आप देख सकते हो कि बेबी एक्चुअली में यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी सफ़र करेगा, और जिसकी वजह से फीटल हार्ट साउंड्स जो हैं वो डिमिनिश होने लगते हैं, एंड दैट इज़ स्टॉलवर्दी साइन, जो मुझे आपको नहीं बताना था, तो आपको कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना था। खैर छोड़ो, ये हो गया। आई होप दिस वीडियो एंड्स अप हेयर। सो आई होप ये सब समझ में आया होगा आपको। तो फॉर सच वीडियोस, फॉर मोर वीडियोस like this, please subscribe my channel. Thank you and have a good day.